I will take discussion after. First we will study, then I will take a discussion. The thing is, some medical students are also there, so they don't understand. They don't have booklet, and maybe some main students are also there. They are also not having booklets. So for them, it's just like sitting idle, doing nothing. So this is the constraint we have to keep in mind. Yes, I know कि पहले का भी रह गया है. I'll do today, promise. I will study only 1 hour. Okay, so then after that I will have the discussion. I will stop after 1 hour. Okay, so next part in galvanic cell is concentration cell. What is concentration cell? When both electrodes are same. ठीक है? Both electrodes are same. When anode and cathode are same. ठीक है? तो let's example कहीं पे लिखा हुआ है Ag to Ag plus, ठीक है? फिर Ag plus to Ag, मतलब कैथोड पे भी Ag इलेक्ट्रोड, एनोड पे भी Ag इलेक्ट्रोड. इसकी कंसंट्रेशन यहाँ लेट्स से C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है. Another example, let's say hydrogen electrode. Pt H2 is going into H plus, यहाँ concentration C1. Okay, यहाँ over here pressure P1, let's say I'm taking pressure, or you can write like this: P1 ATM H plus C1 H plus C2 and H2 P2 and then Pt. Both electrodes are same, both are hydrogen electrode, both are silver electrode, like that. ठीक है? ऐसा कुछ भी हो तो उसको बोलेंगे concentration cell. For that, what is going to be E naught cell? So here E naught cell is going to be 0. ये याद रखना है for concentration cell. क्यों? क्योंकि एनोड और कैथोड सेम है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट विल कैंसिल ईच अदर. ठीक है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? दिस इज गोइंग टू बी E naught, let's say Ag plus 2 Ag minus E naught Ag plus 2 Ag, both are, so that's how it is going to be equals to 0. E naught cell is going to be 0 here. So in those like say in those cases, E naught cell is 0, but E cell is not 0. Condition for which concentration cell will work. Condition for which concentration cell will work. ठीक है? देखते हैं उसको. हेलो मैम, गुड आफ्टरनून. क्या बोल रहे हैं? हेलो, हाँ बोलिए. अच्छा, मैम मैं क्लास में हूँ, उसके बाद कॉल करूँ 8 बजे? नहीं
नहीं कोई बात नहीं, हाँ 5 बजे कॉल करता हूँ, ठीक। ओके, तो जो बच्चे भी ज्वाइन किए उनके लिए ये है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। नेक्स्ट पार्ट जब हमने मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड पढ़ लिया उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो दैट्स हाउ इट इज। वन सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी कंसंट्रेशन सेल। क्या है कंसंट्रेशन सेल? व्हेन एनोड एंड कैथोड आर सेम, है ना, सेम इलेक्ट्रोड। सेम का मतलब ये है सेम इलेक्ट्रोड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है Ag प्लस में जा रहा है, Ag प्लस से Ag जा रहा है। दूसरा लेट्स से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये मैंने मेटल का ले लिया एग्जांपल, ये गैस इलेक्ट्रोड का एग्जांपल ले लिया। तो ऐसा कुछ भी होगा तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? जीरो, एंड ई सेल इज नॉट गोइंग टू बी जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा है कंडीशन फॉर विच कंसंट्रेशन सेल विल वर्क, ठीक है। ये कंसंट्रेशन का मतलब ये वाला कंसंट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। सेल का नाम है ये कंसंट्रेशन सेल। तो कंसंट्रेशन सेल विल वर्क, ये हमें निकालना है। तो कैसे काम करेगा? तो ई सेल शुड बी पॉजिटिव, condition for which concentration cell will work, that means E cell should be positive. This is it. Everything which we have written till now is a part of galvanic cell. सर कितना किया अभी तक? बस स्टार्ट किया है। ओके सर, इट इज ब्लर। ब्लर का क्या कर सकते हैं? ब्लर का बहुत प्रॉब्लम है। Yes, same electrode which I want to say is same material. Means same metal, same gas electrode, like that. Is it better now? It is only better for whoever is having good let's say net, because this is HD part. I have converted to HD. But the problem is whoever is not having very good internet, they will be facing issue. So tell me if somebody is facing issue, if they are not able to, see, then tell me. Okay, चलो let's see. Move to. So you have seen. अब ये कैसे आएगा E cell positive, वो हम समझते हैं, ठीक है। So some, let's say, if you are still not able to see, somebody, let's say, not able to see.
Just try and tell me if you are not able to see. Yes. Yes, Yaksh. Chalo, okay. So it is better for many. Hello. Okay, not able to hear properly. Okay, so well, we are trying just to check if the problem persists. Then let me know. I will switch to normal mode. Okay, E cell is equals to over here positive. Now what will happen in this case? We have to write nurse equation, that is E cell equals to E naught cell minus 0.059 by n log q. And what is going to be q value? This is going to be 0. This we know. Okay, this is going to be 0. So E cell is going to be minus 0.059 by n log q. So we have to put two values over here, and q and n value. So let's say we'll write a cell reaction just to identify what is the q value. So let's say for metal electrode, metal soluble salt electrode, what will happen? Let's say I am taking example, everywhere it is happen, it is going to happen. Ag is going to go for Ag plus, that is at anode, and over here Ag plus is going to be reducing at cathode. And over here Ag plus and Ag plus over here both are having different concentration. At anode this is the C1 concentration, at cathode this is C2 concentration. Okay. So what we are going to write, that is q value is going to be so q value is going to be product concentration divided by reactant concentration. So this is Ag plus, which is at anode. I'm writing like, let's say over here, divided by Ag plus concentration at cathode. ठीक है, ये पूरी रिएक्शन कैसे हो जाएगी? ये दिस इज गोइंग टू बी ओवर हियर, इसको मैं C1 C2 हटा दे रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा. So this is going to cut, Ag solid है, ये तो हट जाएगा. We are going to have Ag plus cathode is giving Ag plus at anode. This is going to be overall reaction. ठीक है, Ag plus cathode and gives Ag plus anode. ठीक है, so this is going to be over here Q is equals to Ag plus product, means product divided by reactant. So product is anode, reactant is cathode. So this is going to happen. And if you have taken, let's say, anode concentration C1 and cathode concentration C2, so this is going to be C1 by C2. And what is going to be n value? So here n value is 1. This part you have to check all the time. This is the main formula, right? You have to check all the time what is going to be n. So you can see by just checking, okay, Ag से Ag plus आ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. Anyway, so E cell will become over here minus 0.059 log C1 by C2. अगर आपको ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब क्या है? C2 C1 से ज्यादा हो, क्योंकि ये लिखा है log C1 minus log C2. So you want negative part, negative should cancel each other over here. So should be C2 concentration should be more than C1 concentration. So for E cell to be positive, C2 should be greater than C1. ये important condition है, यही important condition है
कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए एनोड से। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आई एम राइटिंग हियर कैथोड कंसंट्रेशन should be more than anode concentration, but be careful, this is only for metal soluble salt electrode। कहीं पे हो सकता है थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे है, वो आप देख लेना। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, मोस्ट कॉमन तो यही है, कहीं पे अगर लिखा होता है इन जनरल देन दे आर राइटिंग फॉर मेटल soluble salt electrode, but I will give you one more exception also। ठीक है। यस। सर हम्म। सर वो जब भी रिएक्शन ऐड किया तभी आयंस नहीं कटते क्या? अलग अलग कंसंट्रेशन है ना, अगर कंसंट्रेशन सेम रहती तो फिर काट देते हैं, तो फिर कह सकते थे, ऐसा नहीं है ना। तो फिर मतलब इसकी जो एक्टिविटी तो एक ही वन है है ना, जो देखो। सॉल्युबल है उनका कॉन्सेंट्रेशन। नहीं नहीं वो मैं मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको समझो, ये तो इनकी एक्टिविटी वन है, तो ये हट गए। यहाँ पे Ag प्लस इसकी कंसंट्रेशन अलग है, इसकी हाँ, कंसंट्रेशन अलग है, तो क्या हो रहा है, मतलब एक तरह से ऐसा हो रहा है कि Ag प्लस दूसरे Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मतलब जब भी कंसंट्रेशन सेम रहेगा तो ही काट सकते हैं। हाँ कंसंट्रेशन सेम काटने का सोचो ही मत, कि कंसंट्रेशन सेम होता तो भी आप लिखते तो यहाँ वन हो जाता, log 1 जीरो हो जाता, फिर ये होता, ये कट जाता कंसंट्रेशन यहाँ पे, ऐसे। अच्छा, ठीक है। सर हम्म। सर आपका स्क्रीन पूरा ब्लर हो गया है सर, कुछ दिख ही नहीं रहा, एंड प्लस आपका आवाज भी कट कट के आ रहा है एकदम। हम्म। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, रेज योर हैंड जिनको हो रही है प्रॉब्लम। एक्चुअली इसमें इंटरनेट का इशू है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ लोगों को हो रहा होगा, मैं मान रहा हूँ, जेन्युइनली दिस इज गोइंग टू हैपन। अगर पुराना वाला क्वालिटी खराब, एक बार देखते हैं, फिर से सेट करते हैं।
yes, Ag plus, that is for anode, that is for cathode. नाउ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ये थोड़ा ये चेंज कर दिया। हाँ लेकिन वो सब नहीं आ पाएंगे ना बेटा, आई हैव टू कंसिडर एवरीवन इन क्लास ना। हाँ बोलो बेटा चिन्मय। सर आपने ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में क्या लिखा है? लिखा है कैथोड की कंसंट्रेशन एनोड से ज्यादा होनी चाहिए। ओके सर, ठीक है। Yes, we will discuss beta Anirudh. We will discuss the questions after half an hour. We will be starting. Okay, half hour. Let's say take 50 minutes. After 50 minutes, we will start. I know that many students are not able to connect there. Obviously, in the lockdown, we cannot do many things. So the speed maybe I don't know that will improve or not. So that's why normal I think it's okay. If it is okay, then we'll, or you have to adjust, because many people not having good internet connection, so they will face the problem. They will not understand anything. Yes, we will have all discussion. Okay. Now, ये हो गया हमारा concentration cell. So this cell will function. This cell will function till, है ना, E cell is positive. E cell depend on concentration of ion. तो यहाँ पे क्या है कि जब तक ये वैल्यू पॉजिटिव आती रहेगी तब तक ये फंक्शन करेगा, और हम क्या बोल सकते हैं, और till concentration of cathode is greater than concentration of एनोड। जब तक ये ऐसा होता रहेगा तब तक चलता रहेगा, और जब ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी एंड सेल काम ही नहीं करेगा, कोई पोटेंशियल देगा ही नहीं फिर, राइट। ये हो गया। इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि मान लो क्लोरीन इलेक्ट्रोड है, फॉर क्लोरीन इलेक्ट्रोड एक्सेप्शन लिख रहे हैं, ये लिखा हुआ है दिस सेल विल फंक्शन टिल ई सेल इज पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। और यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है फॉर क्लोरीन इलेक्ट्रोड, लेट्स से क्लोरीन कंसंट्रेशन सेल। हो क्या रहा है, एट एनोड दिस इज गोइंग एज ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Cl माइनस इज गोइंग इनटू Cl2 plus 2 electron, and at cathode Cl2 is going into Cl minus, and here this is 2 electron. So in this case product is having concentration at cathode and reactant is having concentration at anode. तो यहाँ पे फिर वही बात हो जाएगी, मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ये कट गया। Let's say if the pressure is same, just assume if pressure of Cl2 is 1 atm, मान लो, बाद में लिख लेते हैं, चलो ये बात। तो ये क्या हो जाएगा, 2Cl minus at anode plus Cl2 at cathode
एक कॉमिक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ छोटा सा, 2Cl minus at anode plus Cl2 at cathode is going to form 2Cl minus at cathode plus Cl2 at anode. The pressure of Cl2 at anode is equal to pressure of Cl2 at cathode which is 1 atm. मान लो ये दे रखा है, तो hence क्या हो जाएगा, over here Q is going to be according to only this Cl minus cathode whole square divided by Cl minus anode whole square. तो अब अगर ये वैल्यू चाहिए आपको पॉजिटिव, तो यहाँ पे E cell क्या आ रहा होगा, what is going to be E cell over here, E cell is going to be minus 0.059 by n, ठीक है, log Cl minus cathode Cl minus anode whole square, n की वैल्यू 2 है, this 2 will come outside, will cut, तो हो जाएगा E cell is equal to minus 0.059 2 into 2 log Cl minus cathode divided by Cl minus anode, ये कट गया, तो E cell equals to minus 0.059 log Cl minus cathode Cl minus anode. यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन दिस केस एनोड कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है, ये केवल और केवल मेटल्स इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए है, जनरल केसेस में यही होता है, ये एक्सेप्शन मैंने क्लोरीन का ले दिया, तो क्लोरीन में नहीं होगा। अगर मान लो क्वेश्चन उन्होंने ऐसा दे दिया कि बताओ फॉर कंसंट्रेशन सेल ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रोड, या फिर क्लोरीन इज फॉर्मिंग ए कंसंट्रेशन सेल, क्या कह रहा था, हाँ, अगर क्लोरीन इज फॉर्मिंग ए कंसंट्रेशन सेल, तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, एनोड कंसंट्रेशन शुड बी मोर देन कैथोड कंसंट्रेशन। हियर यू कैन राइट एनोड कंसंट्रेशन शुड बी मोर देन कैथोड कंसंट्रेशन। तो ये आप याद रखना ये बात, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है, यू कैन राइट बाय योरसेल्फ, तो ऐसा कुछ रहेगा। हाँ, सारे हेलोजन के लिए ऐसा रहेगा, है ना, ये सबके लिए होगा। बेटा एक्चुअली क्या है कि आप मॉड्यूल डाउनलोड नहीं कर सकते हो जिनमें, ठीक है, यू कैन ओनली रीड, ना आप कॉपी कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए फिर वो आपको मॉड्यूल अगर नहीं खुल रहा है तो आपको अपने फ्रेंड से स्नैपशॉट लेने के लिए बोलना है, किसी अपने फ्रेंड से बोलो कि स्नैपशॉट लेके दे। आपको वेब पेज से नहीं निकालना है, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है पेनासिया करके, उसमें जो आपका लॉगिन आईडी, जो आपका स्टूडेंट आईडी है वही लॉगिन है, ठीक है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है देन रजिस्टर इट। जिन भी बच्चों ने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड कर लो। तो फिर आपको ऐप में फिर वेब पेज नहीं आता है, ऐप तो नॉर्मल है ना, उसमें फिर आपको क्यों वेब पे जाना है। और देखो अभी मुझे किसी ने बताया कि ऐप पे स्क्रीनशॉट लेना अलाउड नहीं है, ठीक है, तो आपको वो खोलना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक नंबर दिया था, किसी सर का नंबर था, वहां पे आपके बार बार मैसेज में आ रहा था कि इन सब चीजों के लिए, देन आस्क दैट पर्सन। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, पेनासिया वेबसाइट पे आ रहा है, देखो ये कह रहा है, चिन्ह में कह रहा है नहीं ऐप पे ट्राई नहीं किया है, तो ऐप पे देखो आप, ठीक है। जिन लोगों ने ऐप पे ट्राई नहीं किया दे शुड ट्राई ऑन ऐप। अच्छा वो नंबर स्टेप अप ऐप के लिए था। ओवरऑल रिएक्शन में स्टेट्स क्या है, मतलब ये तो आयन है और ये गैस में होंगे, ये स्टेट नहीं लिखे हैं, बस ये एनोड कैथोड लिखा है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता इसलिए। यस सर, मैं
फिर से बोलो, हमारी आवाज बहुत कम आ रही है। जीरो पॉइंट फाइव नाइन बाई टू इसलिए क्योंकि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है ना, n की वैल्यू 2 है। जो भी हाइड्रोजन से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो उसके लिए तो ये नहीं है, मतलब एनोड का कंसंट्रेशन कैथोड से ज्यादा ही होना होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कंसंट्रेशन ज्यादा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एनोड पे तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, उससे कंसंट्रेशन से लेना देना नहीं है, उससे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन के कारण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ही यही है कि कंसंट्रेशन 1 है ना। स्टैंडर्ड में हम ये सब बातें क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहां पे फिक्स रहेगा, क्योंकि हमने कंडीशन सारी फिक्स कर रखी है। इज दिस द ओनली एक्सेप्शन अंडर दिस कॉन्सेप्ट? हाँ, मतलब जो गैस वाले होंगे, मैं ऐसा बोलूंगा ये फेमस वन है, हो सकता है कोई और भी एक्सेप्शन हो, तो आपको हमेशा एक बार दिमाग में रखना है कि हमें मुझे सेल रिएक्शन देख लेनी है, अगर कुछ अननोन केस आएगा तो। नोन केस है देन यू नो कि मेटल मेटल में हमेशा ऐसे ही रहेगा, और ये गैस इलेक्ट्रोड मतलब क्लोरीन वाले में ऐसा रहेगा। इनफैक्ट हाइड्रोजन में भी नहीं होता है ऐसा। हाइड्रोजन में भी क्या होगा, अगर हाइड्रोजन में एनोड लिखोगे ना, तो रिएक्शन क्या है, H2 से H प्लस है, ठीक है, N2H+ से फिर H2। तो यहाँ पे भी क्या है, ये एनोड बाई कैथोड आ रहा है, एनोड बाई कैथोड, तो कैथोड ज्यादा होना चाहिए। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए भी मतलब दिक्कत नहीं है, केवल इसी में ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये Cl- जो है Cl2 में जा रहा है, राइट। दिस इज व्हेन नेगेटिव इज गोइंग इनटू लेट्स से ऑक्सीडेशन, तो ये बात आ रही है, उल्टा है यहाँ पे एनोड की कंसंट्रेशन कैथोड से ज्यादा होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं इसमें। तो ये तो हो गया हमारा कंसंट्रेशन सेल। अब इसमें है थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी बहुत, वो हम देखते हैं। अच्छा, इसका और क्या कहते हैं, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का एक क्वेश्चन है, उसको करा के चलते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। तो देखो, दो बातें हमने सीखी। एक तो हमने सीखा कि कंसंट्रेशन में ई नॉट सेल 0 होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ई सेल निकालोगे और ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दो बातें हैं। तो हम कंडीशन देख लेंगे ई नॉट सेल कैसे पॉजिटिव हो सकता है, हम क्यू वैल्यू लिखेंगे और क्यू वैल्यू से चेक कर लेंगे भाई ई सेल पॉजिटिव कैसे आ रहा है, ठीक है। और कल हमने एक बात पढ़ी थी कि इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होता है, और वहां ई नॉट सेल 0 नहीं है। तो दोनों बातें हैं, दो बातें याद और रखना है इसके साथ ही, कि कंसंट्रेशन सेल में तो ई नॉट सेल 0 है, और एट इक्विलिब्रियम पे क्या है, ई सेल 0 है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेट KSP of AgI with the help of following cell. क्या है, Ag is going into AgI where I minus concentration is 0.05 molar and Ag plus again is also in 0.05 molar, that is converting into Ag, and इसके लिए दे रखा है E cell
इज इक्वल्स टू 0.79। ठीक है, या इसको 0.80 ले लो। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बचेगी। मान लो ये दे रखा है वोल्ट एट 298 केल्विन। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, समझते हैं। ये एग्जैक्टली कंसंट्रेशन सेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। बट यहाँ पे हमें कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे नहीं रखा है, ई नॉट वगैरह वैल्यू हमें कुछ दे नहीं रखी है। तो हम क्या करें, राइट? ई नॉट वैल्यू दे नहीं रखी, ई सेल वैल्यू दे रखी है, तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डायरेक्टली जा नहीं सकते। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था हमारे लिए मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड में, हम बोलते थे कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0 हो जाएगा, तो ई नॉट सेल हम निकाल लेंगे। दो अलग अलग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, वी विल कैलकुलेट एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व कि वही क्या KSP वैल्यू आएगी, जो कि हमें पता था ई नॉट इक्वल्स टू होता है 0.059 log 1 अपॉन KSP, तो उससे KSP आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ई नॉट सेल नहीं दे रखा है, ई सेल दे रखा है। ठीक है, तो उसमें क्या मान लेना है, अज्यूम करना है कि लेट्स अज्यूम दिस इज ए कंसंट्रेशन सेल। ऐसे टाइम पे यही काम कर सकते हैं, लेट्स अज्यूम दिस इज ए कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, और सबको नहीं मान सकते हैं कंसंट्रेशन सेल, इसको इसलिए मान ले रहे हैं क्योंकि दोनों सेम मेटल के हैं। ठीक है, वी आर अज्यूमिंग कि दोनों सेम मेटल के हैं, इसलिए इसको कंसंट्रेशन सेल मान रहे हैं। तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब हमें क्या मिला, हमें मिला डायरेक्ट ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। ठीक है, अब हमें क्यू वैल्यू निकालनी है, राइट? तो चलो देखते हैं इसमें क्यू वैल्यू कैसे आएगी। तो एट एनोड क्या होगा, एनोड पे रिएक्शन हो रही है, ये वाली रिएक्शन ऐसे हो रही है Ag टू Ag प्लस। ठीक है, एनोड एंड Ag प्लस plus Cl minus is going into, sorry, I minus is going into AgI। तो ये हो गई पूरी रिएक्शन Ag plus I minus gives Ag I plus इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया एनोड। और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, एट कैथोड Ag plus is going into Ag। तो जब इन दोनों रिएक्शंस को, ओवरऑल रिएक्शन को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है? तो ओवरऑल रिएक्शन को व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड, तो ये आएगा, ये Ag प्लस इधर आ जाएगा, ये Ag कट जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ Ag प्लस एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम कैथोड कंसंट्रेशन प्लस I माइनस एट एनोड गिव्स AgI। इसको लिख लो। अरे एक चीज मैंने इसमें क्या लिख दी, सॉरी। वी हैव अज्यूम दिस इज ए कंसंट्रेशन सेल, ये नॉर्मल बात लिख दी मैंने।
दिस इज वी हैव अज्यूम ये कंसंट्रेशन सेल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी विल राइट कंसंट्रेशन सेल वाली रिएक्शन लिखनी है। एक मिनट इसमें so what we are going to write at anode, हम ये मानेंगे that Ag is going into Ag plus। अब हमने क्या माना है इसको, ये assume that this is a concentration cell। क्यों माना, क्योंकि वही हम इसमें इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट लगा नहीं पा रहे इसलिए। तो Ag is going into Ag plus plus electron and cathode पे क्या हो जाएगा, we'll say कि Ag plus is going to reduce to Ag plus is going to reduce to Ag। ठीक है, पूरी रिएक्शन मत लिखो, ये तो नॉर्मल वाली रिएक्शन लिख दी थी मैंने, ठीक है, डोंट राइट दिस। फिर से समझ लेते हैं, इसमें ई सेल की वैल्यू दे रखी है हमें, ई नॉट सेल नहीं पता है, तो वो जो पुराना वाला मेथड था उससे नहीं निकाल पा रहे, तो वी आर अज्यूमिंग कि लेट्स अज्यूम दिस इज ए कंसंट्रेशन सेल, इसलिए कंसंट्रेशन सेल वाली रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, कि एजी एजी प्लस में जा रहा है और एजी प्लस एजी में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी एजी प्लस कैथोड इज गोइंग इनटू फॉर्म एजी प्लस एनोड। बस ये क्यू वैल्यू हो गई, तो ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई सेल इज गोइंग टू बी माइनस 0.059, या फिर इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0.6 ले लिया बाई 1, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, लॉग एजी प्लस एनोड डिवाइड बाई एजी प्लस कैथोड। हमें क्या पता है, एजी प्लस आयन की कंसंट्रेशन एट कैथोड पता है, तो कैन बी राइट एजी प्लस आयन कंसंट्रेशन एट एनोड, ठीक है, तो इससे हम निकाल लेंगे 0.80, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 0.06, ये हो गया लॉग एजी प्लस डिवाइड बाई एजी प्लस एनोड, और कैथोड की वैल्यू पता है 0.05, तो इसको बाद में लिखेंगे, चलो बाद में अलग अलग लिखेंगे, अभी ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन हमारी क्या होगी, दिस इज गोइंग टू बी बेटर होगा, इसको 0.78 ले लो, कट जाएगा आसानी से। आई वांट कि बस मेथड हम सीख लें, तो लेट्स से 0.78, सो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ से ये कटेगा तो 13 टाइम्स, तो ये हो गया -13 इक्वल्स टू लॉग एजी प्लस एनोड डिवाइड बाई 0.05। -13 का मतलब क्या हुआ, 10 to the -13, लॉग हम हटा देंगे, that is going to be 10 to the -13 is equals to Ag plus ion concentration at anode divided by 0.05। तो Ag plus ion concentration at anode कितनी हो जाएगी, ठीक है, this is going to be 5 into 0.05, तो 10 to the -2, 5 into 10 to the -15, this is Ag plus ion concentration आ गई। अगर सॉल्यूशन में देखा जाए, केवल सॉल्यूशन में देखा जाए, जैसे सॉल्यूशन में जब भी आप भी कभी देखते हो, जब मैंने आयनिक जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि अगर एक सॉल्यूशन में किसी भी मोमेंट पे आप दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट देखोगे, तो क्या होगा, वो हमेशा KIP क्या होगा, KSP के बराबर होगा। जितना भी एक्सेस Ag प्लस और I माइनस होगा वो प्रेसिपिटेट बना लेगा, लेकिन इन सॉल्यूशन यू आर ओनली गोइंग टू गेट Ag प्लस एंड I माइनस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू KSP। तो अगर ज्यादा भी Ag रहा होगा तो वो प्रेसिपिटेट बना लेगा, तो वही हो रहा है यहाँ पे, जो भी Ag से Ag प्लस गया, इससे जितना भी ज्यादा होगा KSP से ज्यादा होगा, जितना भी आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा होगा वो सारा का सारा प्रेसिपिटेट बना लेगा, बाकी बचा हुआ सॉल्यूशन में ही रहेगा Ag प्लस की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से सुनो कि जब हमने ये कंसंट्रेशन सेल माना तो हमने ये प्रेसिपिटेशन वाली बात नहीं की, क्यों, हम चाहते थे वो कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन में है, जो प्रेसिपिटेट बना लिया वो नहीं, ठीक है, वी वांट व्हिच कंसंट्रेशन दैट इज ओनली इन सॉल्यूशन, तो वो क्या होगी, Ag से Ag प्लस जाएगी, एनोड पे जो भी कंसंट्रेशन होगी वो इन सॉल्यूशन पे होगी, ठीक है, फिर Ag प्लस से ये Ag बन गया, ये हमने पूरी रिएक्शन लिख ली कंसंट्रेशन सेल के हिसाब से, एंड देन वी हैव कैलकुलेट व्हाट इज द Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन एट एनोड,
which is present in solution. ठीक है, शायद आपको एक एग्जांपल याद आ रहा होगा आयनिक सॉल्ट में, जब मैं एक्सेस प्रेसिपिटेशन की, मैं कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन की बात करता था, तो मैं बोलता था कि KIP शुड बी ग्रेटर देन KSP, ठीक है, और जब KIP KSP के बराबर क्या हो जाएगा तो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप AgI बनना चालू होगा तो ये तो प्रेसिपिटेट बना लेगा, बाकी जितना भी Ag प्लस और I माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके बराबर होगा, KSP के बराबर होगा। तो दैट्स हाउ वी आर कैलकुलेटिंग। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस in the solution. We know the concentration of I minus, we can write what is KSP. So hence KSP is going to be is equals to KIP, that is Ag plus ion concentration anode and I minus concentration at anode. So this is going to be 5 into 10 to the minus 15, and then it is I minus is also 0.05, 5 into 10 to the minus 2. So this is 2.5 into 10 to the minus 16. This is going to be your KSP value. ठीक है, ये एक तरीका मेथड है, दिस इज काइंड ऑफ ट्रिक वी आर यूजिंग कि भाई अगर हमने इसको E0 सेल मान लिया तो हमने पहले Ag प्लस I की कंसंट्रेशन निकाल दी सॉल्यूशन में और फिर उससे KSP निकाल लिया। यस, Can you explain that precipitation part? फिर से देखो, ये जो बात मैंने मुझे याद नहीं है कि मैंने ये एग्जांपल कराया या नहीं कराया, लेकिन मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि हमने मान लो दो आयन एक साथ ले लिए, Zn2 प्लस कैडमियम 2 प्लस मान लो, और हमने दोनों की कंसंट्रेशन 10⁻⁻² लिख ली, और यहाँ पे मान लो हम जो है ऊपर से H2S डाल रहे हैं। तो जब हम ये डाल रहे हैं तो क्या होगा, मान लो पहले जो है वो कैडमियम प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है, तो क्या कैडमियम की कंसंट्रेशन एकदम 0 हो जाएगी, क्या सारा का सारा कैडमियम प्रेसिपिटेट हो जाएगा, या थोड़ा बहुत बचेगा तो बचेगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ, मान लो ये वैल्यू है 10⁻⁻10, मान लो KSP की वैल्यू कैडमियम के लिए है 10⁻⁻10 मान लो, ठीक है, वैसे होती तो 10⁻25 27 ऐसे होती है, तो चलो मान लो 27 है। तो क्या होगा, शुरुआत में ये 10⁻⁻2 है, आपको सल्फाइड कंसंट्रेशन 10⁻⁻25 भी चाहिए होगी, ठीक है, इतनी, तो ये 10⁻⁻27 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये कंसंट्रेशन बढ़ा के 10⁻⁻2 कर दी तो क्या होगा, तो जितना भी एक्सेस कैडमियम है वो खत्म हो जाएगा, और कहां पे जाके बात रुकेगी, जब कैडमियम की कंसंट्रेशन 10⁻⁻25 हो जाएगी, 0 नहीं होगी। ठीक है, कैडमियम की कंसंट्रेशन 10⁻⁻25 हो जाएगी, तो 10⁻⁻2 से 10⁻⁻25 तक जितने भी मोल्स होंगे कैडमियम के सब प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में कैडमियम 0 नहीं होगा, वो 10⁻⁻25 होगा। तो बस वही किया है हमने, Ag प्लस I की कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन निकाल दी है, इसको हमने I माइनस की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमें KSP वैल्यू मिल गई। यहाँ पे ये पॉइंट जो नोटेड है वो ये है कि शुरुआत में अगर मान लो 10⁻⁻2 था और आपने 10⁻⁻25 से जैसे ही ज्यादा की वैसे ही प्रेसिपिटेट बन जाएगा, बनने लग जाएगा। मान लो आपने 10⁻⁻2 कर दी सडनली बढ़ा के, तो ऐसा नहीं होगा कि कैडमियम 0 हो जाएगा, कैडमियम खत्म होना चालू हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बनना चालू हो जाएगा, बट कहाँ रुकेगा जाके, 10⁻⁻25 पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो कैडमियम की कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन 0 नहीं होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी 10⁻⁻25, and with the help of that we are calculating, अच्छा सॉल्यूशन में कितना Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन है, तो बस we have calculated ionic product, और इन सॉल्यूशन में जो भी आयनिक प्रोडक्ट है वो KSP के बराबर है, that's how we are getting KSP। सर हेलो सर। हाँ बेटा, सर वो KSP की जो वैल्यू आई है
Sir, that should be 25 to 10 to the power minus 17 ना? हाँ तो उसको 2.5 लिखा है बेटा, ये 2.5 है, पॉइंट आपको दिख Okay, नहीं sir, रहा। वो point was not visible, sir. हाँ कोई बात नहीं। Okay. Wide out. हाँ ठीक। तो ये तो हो गए हमारे मतलब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन सेल। अब हम आते हैं that is last part of thermodynamic galvanic cell, that is thermodynamics। कुछ थर्मोडायनेमिक्स हमने पहले ही देख रखी है, हम यहाँ एंट्रोपी की बात करेंगे, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी की बात करेंगे, तो वी विल अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट दिस पार्ट कि G is equals to H minus Ts, ठीक है, and H we know that is E plus PV, ठीक है, from thermodynamics। So what we can calculate is we will put H value over here, the G is equals to E plus PV minus Ts। We will take the delta, so dG equals to dE plus PdV plus VdP minus TdS minus SdT। We have taken differentiation, तो ये मिल गया dG equals to। Now we know from first law of thermodynamics, ये मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी लिखा है, बस मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो वी नो दैट delta E change in internal energy is nothing but which is going to be Q, let's say over here, plus W, and W is nothing but minus PdV। तो Q is equals to, यहाँ से मिलेगा Q equals to delta E minus W which is equals to delta E plus PdV, because W is minus PdV। तो ये तो मैंने केमिस्ट्री वाले से लिखा, फिजिक्स वाले से आपसे डायरेक्ट लिख लेना तो भी वही आ जाएगा, डेल्टा ई प्लस पी डीवी। ये क्यों आ गया? And from second law of thermodynamics, from entropy we know that delta S is equals to, right, Q by T, so Q is equals to T ds or T delta S। तो बस ये दोनों बातें हम यहाँ पुट कर देंगे, तो D plus PdV is equals to Q and TdS is equals to Q, तो hence क्या हो जाएगा, dG is equals to Q plus VdP minus Q minus SdT। ये कट हो गया, तो dG is equals to BdP minus SdT। ये आपने फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में बनाया होगा, ठीक है। क्या है डाउट बेटा आपका? नहीं, किसी को भी हम कंसंट्रेशन सेल नहीं ले सकते। यहाँ पे एक ही मेटल के दोनों सॉल्ट थे, इसीलिए हमने कंसंट्रेशन सेल माना है, उसको कभी भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला मिला dG इक्वल्स टू BdP माइनस SdT। इसको लिख लो आप लोग।
ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, ठीक है, तो अब देखो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर dp equals to 0, तो hence dg equals to minus hdt, ठीक है। ये कहाँ पे है, फॉर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, तो फॉर केमिकल रिएक्शन जनरली ओपन एटमॉस्फेयर में होती है, इसलिए हम जनरली वहां पे क्या मानते हैं, प्रेशर कांस्टेंट मानते हैं, dp equals to 0, तो dg equals to minus hdt, तो अब क्या हो जाएगा, you can write s is equals to hence s is equals to minus dg by dt, this is the function हम चाहते थे कि हमें एंट्रोपी की पता चला है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, hence डेल्टा एस हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी और डेल्टा जी, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एनएफई, तो वी विल पुट हियर, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा सिंस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एनएफई, बस यहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू दिस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एन एफ डी बाई डी टी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो टेलिंग यू द हाउ द E cell is varying with time, ठीक है, this is d by dt is going to be according to how the E cell is going to varying with time, ये कैसे और भी लिखा जा सकता है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है NF डेल्टा E by डेल्टा T, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग E cell दे रखा है, तो हम ये निकाल लेंगे E2 minus E1 T2 minus T1 करके, ठीक है, ये तो आ गया आपका डेल्टा H का फॉर्मूला, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, डी बाई डी टी। अब निकालना है अगर मान लो डेल्टा एच, तो सिंस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, इन दोनों की वैल्यू रख दो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई प्लस इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, तो एन एफ टी डी बाई डी टी, ये आ गया आपका डेल्टा एच। हाँ, डी टी टेम्परेचर है बेटा, कैपिटल टी दिस इज डिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, स्मॉल टी इज टाइम, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में स्मॉल टी टाइम था और कैपिटल टी टेम्परेचर। अब इसमें अभी तीसरा एक और हम निकाल सकते हैं, हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या होता है, Q इज इक्वल टू
सी डी टी, और क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू बी एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच विच इज नथिंग बट सीपी डी टी। ठीक है, तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, मतलब डी टी, डी एच लिख लो यहाँ पे। डी और डेल्टा में डिफरेंस केवल टाइम इंटरवल का है। ठीक है, तो ऐसा लिख लिया। इसमें अब इसको क्या करो डिफरेंशिएट कर दो इस वाले को, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टी। We are going to, let's say over here, this is going to be over here, Cp ऐसे लिख लेते हैं, Cp is equals to dH by dt, and then you are going to differentiate over here. This is going to be, तो ये हो जाएगा n minus nf d by dt plus, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा nf d by dt, फिर t को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा, तो nf t डी स्क्वायर ई बाई डी टी स्क्वायर, ये कट हो गया, तो Cp इज इक्वल टू एन एफ टी डी स्क्वायर ई बाई डी टी स्क्वायर। ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, इनका एक क्वेश्चन देता हूं, आपको सॉल्व करना है। यस, So delta H equal to minus NFE plus NFT DE by DT. हाँ, The ये टी हमने यहाँ delta पुट कर दिया, दिस टी, हाँ, So it should be delta E by delta T, no? Not DE by DT. कौन फिर से बोलो। It should be delta E by delta T, no? Not DE by DT. Delta H should be NF delta E by delta T. हाँ, इसको नहीं, ये क्या है एक्चुअली, क्या है, तुम्हें अगर टेम्परेचर का फंक्शन दे दिया जाए तो डिफरेंशिएट कर देना, दो वैल्यू दे दें, जैसे मान लो मैंने एक बोल दी टेम्परेचर T1 पे, मान लो मेरा ई सेल है 0.30 वोल्ट और T2 पे है मान लो 0.24 वोल्ट, तो तुम डिफरेंस करके निकाल लेना। अगर मैंने फंक्शन दे दिया कि ये टेम्परेचर के हिसाब से वेरी कर रहा है, जैसे 0.30 T माइनस समथिंग 0.06 T स्क्वायर, ऐसा कुछ बोल दिया, देन यू विल डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट कर लेना बस। ठीक है, ठीक है, हाँ बोलो बेटा श्रेया। सर हाँ, आपने DH बाय DT लिखा है ना, फिर आपने डेल्टा H को क्यों डिफरेंशिएट किया? एक्चुअली जब हम H की बात करते हैं ना, तो हमेशा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए ही बात करते हैं, तो डेल्टा H है ये। ठीक है, यहाँ पे भी ये जब आएगा ना Q, Q जैसे कभी हम Q की बात कर रहे हैं और कहीं लिखा होता है DQ, बात सेम ही है। ठीक है, चेंज इन हीट कर लो या फिर ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट कर लो, बात बराबर ही है, तो इसमें तुम कंफ्यूज मत हो। ठीक है, वी आर नॉट फाइंडिंग एब्सोल्यूट फंक्शन। ओके, थैंक यू सर। मतलब मैं कह रहा हूँ कि हीट ट्रांसफर आप चेक कर लो, ठीक है, तो हम उसे क्यू लिख लेते हैं, कई जगह पे डी क्यू लिख लेते हैं। डी क्यू का मतलब यही है, अगर वेरी करा रहे हो किसी फंक्शन के लिए तो हम कैलकुलेट निकाल लेंगे चेंज इन क्या है, तो कई जगह उसे क्यू लिख देते हैं, कई जगह डेल्टा क्यू लिख देते हैं, वैसे ही है यहाँ पे। अब ये जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, इस पे बस एक क्वेश्चन करते हैं और फिर ये पार्ट खत्म हो गया, देन वी विल बी हैविंग डिस्कशन। फॉर्मूले याद रखना, ठीक है, S इक्वल्स टू NF dE by dt, और यहाँ पे तो डेल्टा G पता है, विल डिफरेंशिएट डेल्टा H, तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, the standard
the standard potential of the following cell is 0.23 volt at 15 degrees Celsius and 0.21 at 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दे रखा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि डी बाई डी टी दे रखा है यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट मान लो, डेल्टा एस नॉट फॉर द सेल reaction by assuming that these quantity remain unchanged in the range 15 degree to 35 degree। ठीक है, ये हमें लिखना है। तो इसमें सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो निकालेंगे डी बाई डी टी। ठीक है, अच्छा एक और चीज बात याद रखनी है, जब इन्होंने ये नॉट पूछ लिया है ना, तो जहां टी की वैल्यू हमें डालनी होगी वहां 298 डालेंगे। ठीक है, यहाँ से तो डी बाई डी टी निकाल लेंगे। तो डी बाई डी टी क्या हो गया, चलो सॉल्व करो। डी बाई डी टी हो गया E2 माइनस E1, तो 0.21 माइनस 0.23 डिवाइड बाई 20, तो डिफरेंस है 35 माइनस 15 20, तो ये हो जाएगा माइनस 0.02 डिवाइड बाई 20, तो ये आ गया माइनस 1 इंटू 10⁻³ -3 सॉरी। ठीक है, वोल्ट पर सेकेंड आ गया डी बाई डी टी। व्हाट इज गोइंग टू बी डेल्टा एस नॉट, तो डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, एन एफ। अच्छा मैंने सेल नहीं लिखा है, ओके, I have to write the cell also. Pt H2 gas to H plus AgCl solid to Ag solid, ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये तो डी आ गया। You have to calculate what is the n value over here.
बोलते जाओ, हाँ बेटा बोलते जाओ। सर वो आपने वो इसके क्वेश्चन के पहले एक फॉर्मूला लिखा था ना, वो लिखना मेरा रह गया था, आप बता सकते हो क्या था? वो अभी मैं लिखूंगा यहाँ आंसर में, ठीक है। हाँ बोल बेटा ठीक श्रेया। है सर। सर वो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस होगा ना? हाँ मैंने गलत लिखा है, वोल्ट पर डिग्री है या वोल्ट पर केल्विन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। ये H2 is going into 2H plus, this is cell reaction, plus two electrons, and here this is going to be and at cathode AgCl is going into Ag plus Cl minus, and then Ag plus is going into Ag, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको we can multiply it by 2, ठीक है। तो you have to multiply whole it by 2, तो ये हो जाएगा H2 plus 2 AgCl gives 2 Ag plus 2 HCl। ये आपकी रिएक्शन आ गई। H plus और Cl माइनस को मैंने एक साथ लिख दिया, इफ यू वांट यू कैन राइट सेपरेटली। तो n की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2। And first you are going to write तो डेल्टा S नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे तो t का टर्म नहीं आएगा, तो ये आएगा NF dE by dt। So this is going to be 2 into 96,500, so 96.5 किलो में ले रहे हैं, या फिर लिख लो पहले कूलम, कूलम इनटू, है ना। ये आ गया आपका कितना, -1 इंटू 10⁻³ ठीक है, वोल्ट पर केल्विन। सो डेल्टा S नॉट इज इक्वल्स टू C इंटू B होता है जूल, आपको पता है ना। तो ये 10⁻³ ये कट गया 10⁻3, तो ये हो जाएगा 193 जूल पर केल्विन माइनस, ठीक है। नाउ व्हाट इज डेल्टा H नॉट, तो डेल्टा H नॉट की वैल्यू आएगी, क्या था फॉर्मूला हमारा, दैट इज -NF E सेल, H नॉट निकालना है ना, तो E नॉट सेल, ठीक है, ठीक है। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी प्लस T डेल्टा S, तो NFT DE by dt। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो T298 लिखोगे और एक E नॉट सेल लिखोगे। तो अब E नॉट सेल क्या होगा ये आपको देखना है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर हम देखें, हमें किस पे देखना है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो E नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी E नॉट सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस इज गोइंग टू बी, तो आपको E सेल पता है, आपको 15 डिग्री पे E सेल पता, E नॉट सेल पता है, मतलब आपको 35 डिग्री पे, तो इसके बीच का पॉइंट है ये। तो या तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल लो, यहाँ पे आ जाएगा 0.22 ये आपका, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि
आप लिख सकते हो कि ये ई नॉट सेल या तो मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, या फिर ये हो सकता है आपका कैसे कि आप लिख सकते हो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, मान लो ई नॉट सेल एट टेम्परेचर T1 प्लस डी बाई डी टी इंटू डेल्टा टी, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है, ये विद टेम्परेचर वेरी कर रहा है ना, तो कितना वेरी कर जाएगा वो आप देख लो। तो 15 डिग्री पे आपको पता था 0.23 प्लस ये कितना है -1 इंटू 10⁻³ किस टेम्परेचर पे देखना है आपको, देखना था ई नॉट सेल एट T2 है ना, तो या तो ये निकाल लिया हमने डायरेक्टली क्योंकि हमें पता है बीच का पॉइंट है तो बीच का निकाल लिया, या फिर ऐसे निकाल लिया ई नॉट सेल एट T2 0.23 आपको पता है T1 पे 15 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद कैसे वेरी कर रहा है, इस तरह से वेरी कर रहा है, पर डिग्री टेम्परेचर ऐसे चेंज हो रहा है, तो इंटू 10 लिखोगे तो ये आ जाएगा 0.23 प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस, मतलब माइनस 0.01, तो इससे भी आ जाएगा 0.22 वोल्ट। तो ये आपको याद रखना है। ई नॉट सेल ले रहे हैं हम, डेल्टा एच नॉट निकालना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन फिक्स है। अब वैल्यू रख दो, तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आ जाएगी NFE, तो -2 F की वैल्यू 96,500 इंटू 0.22 प्लस यहाँ पे भी क्या है NF dE/dt, तो नेगेटिव में ही है तो ये प्लस प्लस माइनस आ जाएगा। अच्छा NF dE/dt हमने निकाला है -193 है, तो 193 इंटू 298 कर दो, इससे आंसर आ जाएगा, थोड़ा लंबा आएगा ठीक है। तो ये हटा दिया तो 22 आए, 22 इंटू 2 4, ये आ गया आपका -44 इंटू 965 माइनस 193 इंटू 298, इसको सॉल्व कर। ई नॉट सेल देख लो, एक तो तरीका ये है कि भाई बीच का पॉइंट है तो 0.21 0.23 था 0.21 था तो उसका बीच का पॉइंट आ जाएगा 0.22, क्योंकि 15 और 35 के बीच 25 होता है। नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हो ई नॉट सेल एट T2 क्या होगा, ई नॉट सेल एट T1 प्लस कैसे चेंज हो रहा है विद टेम्परेचर, dE/dt चेंज हो रहा है, कितना टेम्परेचर चेंज होगा 10 डिग्री का चेंज होगा, तो लिख दिया बस। ठीक है, ये तो हो गया एंड ऑफ दिस पार्ट। हाँ चलो अभी हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। हाँ हाँ सर, वो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या लिखा है आपने? -NFE, नहीं नीचे नीचे सर, हाँ यहाँ पे, हाँ ये वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू 2, f की वैल्यू, e की हाँ। वैल्यू ऐसे। और ये NFT dE/dt, इसका जो आंसर है वो निकाला, वो था ना? NF dE/dt यहाँ निकाल लिया था, हाँ 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 तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। हाँ, समझा। चलो तो ये एंड हो गया हमारे गैल्वेनिक सेल का। इसमें अभी कुछ प्राइमरी सेकेंडरी सेल आपके यहाँ रह गए हैं, ठीक है, कोरोजन वगैरह ये रह गए हैं, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। बाकी दैट्स द एंड ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब जिन बच्चों को डिस्कशन जो बच्चे मेडिकल वाले हैं दे कैन गो, ठीक है, और बाकी अभी हम जो डिस्कशन पार्ट है वो देखेंगे। पहले हम कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, आई फील लाइक कि जल्दी हो जाएगा, आई हैव नो आइडिया,
ठीक है, एंड फिर हम करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन देख लेना। अनीश का क्वेश्चन है सर इतना बड़ा कैलकुलेशन आएगा, तो आ सकता है जेई एडवांस टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, थोड़ा कैलकुलेटिव देखते हैं। भाई कोई मुझे देखो, जिस बच्चे ने मुझे वो दिया था लॉगिन पेनेशिया का, उसका लॉगिन अभी हट गया है, पता नहीं, एक मिनट देखता हूँ मैं, नहीं चल रहा है। ओके राइट, ठीक है, मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 27 से। क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले है 33, एक मिनट मुझे लिख लेने दो जिन बच्चों ने बोला है। 33, 39, वेट एक मिनट, 33, 39, 43, 44, 43, 44, फिर है 37, 29, 37, 29, 40, 38, सारे ही क्वेश्चन पूछ लेते तुम लोग। 44, 46, 30, 44, 46, और क्या क्या है, 45 भी पूछा हुआ है, 29, 32, 45, मैं सीक्वेंस से लिख दे रहा हूँ। 29 पूछा है, 30 पूछा है, 32 पूछा है, 33 पूछा है, एंड 38 पूछा है, 39 पूछा है, 40 पूछा है, 43, 44, 45 भी किसी ने पूछा था, 46 भी पूछा है। भाई ये तो क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन हो गए। हाँ भाई 37 भी पूछ लिया है। देखो जो क्वेश्चन बच जाते हैं ना वो कोई और पूछ लेता है, तुम लोग मिल बांट के पूछते हो, तो किसी ने नहीं पूछा होगा वो कोई और पूछ लेगा। 37, अभी सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं सर, देख लो ना आंसर, इतना इतना मतलब क्लोज है तो चलेगा। अगर लॉग आपको 0.06 लेके लिख लो, आपको तो ऑप्शन देखना है ना, देख लो आप। चलो देखते हैं 29 में लिखा है 2 half cell have standard electrode minus 0.44, 0.799 volt respectively. Those two are coupled to make galvanic cell. Which of the following is true? ये किसने पूछा है, नहीं बताऊंगा। 29, 30. What is the cell potential for the reaction below? E नॉट दे रखा है दोनों का, ठीक है, और इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड पूछा है, ई नॉट, कैथोड माइनस एनोड कर दो बस, और क्या है, आंसर आ गया। 30 कैथोड माइनस एनोड। फिर 32 किसने पूछा है, ठीक है 32, फॉर द फॉलोइंग ई नॉट हाफ वैल्यू दे रखी है, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ई नॉट हाफ वैल्यूज व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल वुड रिजल्ट ए सेल विद द लार्जेस्ट पोटेंशियल। तो देख लो हिट एंड ट्रायल करके कौन आएगा, एक को कैथोड पे लो, एक को एनोड पे लो, देख लो आंसर। बी और बी को ले लो, सेकंड वाले को, ठीक है, कैथोड पे, और फर्स्ट वाले को एनोड पे, तो हो जाएगा 2.5 सबसे ज्यादा। ऐसे क्वेश्चन पूछे। 33, the equilibrium constant for the reaction SN gives
SN2 प्लस H2 ये हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या निकालना पड़ता है, ई नॉट सेल निकालना पड़ता है, इज माइनस 0.059 लॉग के इक्विलिब्रियम। सॉल्व कर लो, ये वैल्यू आपको दे रखी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो 0 होता है, तो बस जो भी होगा वो SN का ही आएगा, तो ये हो जाएगा 0.14 equals to 0.059 log के इक्विलिब्रियम। सॉल्व इट, गेट द आंसर। ठीक है, तो इसमें देख लो, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आई थिंक कितना बनेगा उसके हिसाब से 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 10 to R 2 में आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू, ये किसी और से रिलेटेड है क्या? क्वेश्चन नंबर 34 to 38, ठीक है। A galvanic cell is constructed from half cell containing a solid chromium electrode in 1 molar concentration and half cell containing solid tin electrode in 1 molar concentration of N, ठीक है। Half cell are linked by the external circuit by a KCl salt bridge, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है तो इसका क्या होगा, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे क्या है, कैथोड पे आपको खुद देखना पड़ेगा, SN आएगा, एनोड पे क्या आएगा, क्रोमियम आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 0.14 माइनस 0.74, दिस इज गोइंग टू बी ई नॉट सेल एंड दैट विल बी 0.60, तो बस 0.60 इज इक्वल्स टू 0.059। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एन की वैल्यू आप देख लो। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में भी मैंने एन की वैल्यू ध्यान नहीं दी थी, आप एन देख लेना, एन की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 2 है, ठीक है। तो एन की वैल्यू 2 इस वाले क्वेश्चन है, जो ये 33 क्वेश्चन है उसमें सॉल्व कर लेना, और यहाँ पे भी एन की वैल्यू कितनी है, अच्छा यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 2 प्लस है और CR 3 प्लस है, तो ये आएगी 6 है लॉग, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका के इक्विलिब्रियम। बस इसको सॉल्व करो, इससे आंसर आएगा। तो ये बनेगा आपका 60 में, अगर मान लो ये 0.01 आ गया तो 60 समथिंग पावर 61 लिखिए, वो देख लो आप, ठीक है। इससे डी 37 का 38, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर दिस रिएक्शन इन किलो जूल, तो डेल्टा जी नॉट क्या है, माइनस NFE सेल, ई नॉट सेल, बस एन की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता है, ई नॉट की वैल्यू पता है, सॉल्व इट। 38, 39, the value of equilibrium constant for feasible reaction is, equilibrium constant for a feasible reaction, अच्छा उसके लिए क्या होना चाहिए, ई नॉट सेल 0 से बड़ा होना चाहिए, ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा 0.059 बाई एन वैल्यू लॉग, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू 1 लॉग 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाएगी, तो फिर क्या होगा 39 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, इफ द फॉलोइंग, इसमें कोई डाउट है किसी में, ये सब क्वेश्चन नंबर 40, if the following half cell have E naught value as this, E naught of the cell will be, ठीक है, देख लो इसको, कैथोड माइनस एनोड कौन होगा कैथोड पे, अच्छा ये सॉरी, ये एक सेल से दूसरा सेल बनाया है, ये वाला क्वेश्चन तो क्लास में कराया है, सेल क्लास नोट्स में है 40, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। Fe वाला ऐसे लिखा था मैंने, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, Fe2 प्लस से Fe, और फिर ये पूछा था, यही इन्होंने पूछा है शायद, ठीक है। वैल्यू आई थी माइनस 0.036, 40 हो गया। 43, the cell potential for electrochemical reaction shown below depends on Cl minus and Cu2 plus ion concentration. Calculate the cell potential at 25 degree Celsius. Next equation लगाओ, the cell potential for the electrochemical reaction shown below
depends on Cl minus and CO2 plus concentration. Calculate the cell potential. If CO2 plus this and Cl minus is this. अच्छा ये इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है इधर, इसमें Q वैल्यू लिखना है बस। तो ये हो गया आपका, दे रहा है Cu2 प्लस 2Cl minus plus 2 Ag solid gives Cu solid and 2 AgCl. This is also solid. तो ये सब solid हट गया। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 upon Cu2 plus ion concentration Cl minus ion concentration whole square। ये आपको है ना, और इसके लिए इन्होंने E नॉट सेल भी दे रखा है, तो E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल 0.12 माइनस, अच्छा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 2 प्लस से 0 जा रहा है, 2 का चेंज है, और यहाँ पे ये 0 से एनीवे प्लस 1 जा रहा है, बट टोटल यहाँ पे कितना है 2, तो 2 का चेंज है, तो 0.06 डिवाइड बाय 2 log 1 अपॉन CO2 प्लस Cl माइनस का होल स्क्वायर। सॉल्व इट। Cu की कंसंट्रेशन दे रखी है, Cl माइनस की कंसंट्रेशन दे रखी है, थोड़ा कैलकुलेशन आएगा बट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 43 का 44, व्हाट इज द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द रिएक्शन। सेम काम यही करना है, इसमें कंसंट्रेशन दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, अप्लाई करो आंसर 45। व्हाट इज द E नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो क्या दे रखा है, mx2 is going into ms 2x minus and ksp is given, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको पता है E नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस 0.059 बाई n log ksp which is nothing but E नॉट, एक दे रखा है मेटल इलेक्ट्रोड, एक दे रखा है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, तो क्या होगा 0.10 दे रखा है इसका, एंड इसका फिर ये आपका अगर मान लो इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है तो ये x माइनस ओके जो भी है x माइनस mx2 gives m, ठीक है, माइनस E नॉट m2 प्लस 2m, तो इसके बेसिस पे ये आ जाएगा, ये इधर पॉजिटिव आएगा, बस प्लस कर दो 0 पॉइंट, ये इधर का 0.101, तो ये हो जाएगा 0.059 बाई 2 1 अपॉन माइनस, तो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन होगा, ये दोनों सेम होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा इन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है 0.1, दो फॉर्मूले बताए थे ना मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड में, एक तो ये बताया था माइनस यहाँ आएगा, और एक वैल्यू ये बताई थी कि कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड पे आपने ये ले लिया है, सॉरी उल्टा होगा, कैथोड माइनस एनोड, एक बार वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। वन व्हाट वी विल डू इज कि इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कैथोड कौन होगा एनोड कौन होगा।
इन्होंने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो ये है, सुनो फॉर्मूले के हिसाब से देख रहे हैं, छोड़ो वो। E naught cell is equals to, कंफ्यूज नहीं होना है, E naught cell is equals to, this is going to be minus 0.059 by n log KSP and E naught cell is equals to, अगर हम देखें तो E naught x E naught m2 plus by m minus E naught x minus m x2 m, ये है वहां पे। तो हम जब ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते थे तो ये क्या आ जाती थी 0.059 by n E naught m2 plus 2m माइनस E naught x माइनस, ये क्लास में कराया हुआ है लास्ट में ये, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, बस इसको इधर डाल दो। तो E naught x माइनस mx2 m इक्वल्स टू E naught m2 plus m plus 0.059 by n log KSP, ये आ गया आंसर। ये देख लो कौन से वाले ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ये पहले वाले ऑप्शन में, फर्स्ट में 1/KSP लिखा है ना, तो KSP ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बस आ गया आंसर। चेक 46 the potential of half cell below was 1.05, what is the pH? तो देख लो इसमें आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मैंने pH बताया था आपको, दे रखा है E naught सेल, कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सॉरी एनोड पे, तो ये हो जाएगा 0.799 माइनस E naught सॉरी E H2 to H प्लस, और ये वैल्यू कितनी आ गई, E naught सेल दे रखा है आपको 1.05, तो इससे इसको 80 लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू आ गई 0.25 इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस E H2 से H प्लस, और ये वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू क्या होती है माइनस 0.059 pH, तो माइनस माइनस प्लस 0.059 pH, बस इससे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 4 के आसपास। अच्छा इन्होंने E naught वैल्यू दे रखी है, तो मैं Ag की भी कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, सॉरी डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इन्होंने डायरेक्ट नहीं आएगा, एक्चुअली ई सेल दे रखा है, राइट, ई सेल दे रखा है, ई सेल इज गिवन दैट इज 1.05 एंड ई नॉट सेल अगर देखेंगे तो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी, सॉरी ई सेल ही निकाल लेते हैं, ई सेल क्या होगा, ई होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो पहले ई कैथोड निकाल रहे हैं, ई कैथोड क्या होगा Ag प्लस से Ag इक्वल्स टू 0.80 माइनस 0.06 बाई n वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1/Ag प्लस, और Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, ये दे रखी है, तो इससे ये हो गया log 10, log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा हमारा 0.80 माइनस 0.06, तो ये हो जाएगा 0.74, ये यहाँ पे हमने गलती कर दी थी, बस अब आ जाएगा 1.05 इक्वल्स टू 0.74 माइनस E H प्लस से H2, सॉरी H2 से H प्लस, रिडक्शन, ये वैल्यू आई 0.31, दिस इज वैल्यू इज नथिंग बट, तो ये जाएगा 0.059 pH, तो 5 के आसपास अभी इधर से आएगा आंसर 5.25 46। एनी अदर डाउट टिल 60? 47 में क्या करना है, Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, इसका E naught वैल्यू दे रखा है
and use the data above in to calculate KSP. एक मिनट, इन 47 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 3 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, 2 तो कोई भी 2 को बना के आप, कोई भी 2 से पहले 2 को बना लो, पहले 2 से E0 47 में पहले 2 से E0 सेल निकालो, क्योंकि E0 वैल्यू दे रखी है आपको, फिर निकालो KSP। सेकंड वाले डेटा को मत देखो, BR2 वाले को। थर्टी फाइव 31 सॉरी 31 क्या है 31? The standard electrode potential, the standard reduction potential for half reaction is given for the EMF of cell reaction. This is EMF of cell पूछा है इन्होंने, तो क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे कौन होगा, ये इन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे बेटा दोनों, दे हैव गिवन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनको रिडक्शन पोटेंशियल में करेंगे तो माइनस माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन है Zn से Zn2 प्लस, तो माइनस 0.76 आएगा और माइनस 0.41 आएगा, तो जो ज्यादा नेगेटिव है वो हो गया एनोड, जो ज्यादा लेस नेगेटिव है वो हो गया कैथोड, तो माइनस 0.41 माइनस माइनस प्लस 0.76, तो 0.35। आपने वही गलती कर दी ना जो मैंने बोला था, रिडक्शन पोटेंशियल क्रॉस चेक करने हैं हमेशा कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं नहीं। और कोई क्वेश्चन 60 तक, एक मिनट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन 60 या कहाँ तक दिया था मैंने, 50 तक दिया था शायद, 50 तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन सेल हो जाएगा शायद आपसे, एप्लीकेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, तो नेक्स्ट होमवर्क है आपका 60 तक है, नेक्स्ट 60 तक कर लेना बेटा, आप देख लो वो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा, ठीक है श्रेया। क्वेश्चन 44 में आप आंसर में देख लो, कोई बात नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही बन रहा है या नहीं वो देखो, ठीक है। सब्जेक्टिव देखते हैं, जिन लोगों ने सब्जेक्टिव नहीं किया कोई बात नहीं, जिन्होंने कर लिया उनको देख लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर आप बताओ सब्जेक्टिव, कोई डाउट सब्जेक्टिव में 21 तक, वैसे थोड़ा आसान है, इतना टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, द नॉर्मल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn इज रिफर टू SHE 0.76, तो उन्होंने ऑक्सीडेशन दिया है तो रिडक्शन बदल जाएगा माइनस 0.76, एंड फॉर Cu इज माइनस 0.34, तो एक्चुअल में रिडक्शन कितना हो जाएगा 0.34। When the excess of Zn is added to CuSO4 solution, Zn displaces Cu till equilibrium is reached. What is the ratio of Zn2 plus to Cu2 plus at equilibrium? तो बस equilibrium पे क्या हो जाएगा, E0 सेल 0 हो जाएगा, सॉरी E सेल 0 हो जाएगा, E0 सेल रहेगा आपका, तो E0 सेल आप निकाल लो बस। ये क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 में, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल minus 0.059 by n, n की वैल्यू 2 log Zn2 plus divided by Cu2 plus, ये आ गया। इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी। E0 सेल क्या होगा, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं, तो कैथोड का है 0.34 मतलब कॉपर, एनोड का है माइनस 0.76, तो दिस इज 1.1 वोल्ट, इसको रख दो यहाँ पे, तो 1.1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0.059 by 2 log Zn2 plus by Cu2 plus, you will get the ratio from here, so solve कर लो आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं बेटा, बाद में बताएंगे, तो आपने नहीं पूछा अभी, और सब्जेक्टिव बताओ किस किस को डाउट है, किसी ने पहले पूछा था क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था,
कुछ 5 में कुछ ड्राइंग में शायद प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। Cl से गया 2Cl माइनस 5 पूछा किसी ने? ठीक है, फिर मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। चलो गेट इक्विप्ड पे आ जाते हैं। हाँ, अभी कोई क्लास तो नहीं है आप लोगों की? अच्छा, मैथ्स 5 बजे है, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हो सकते हैं शुरुआत में। पहले 10 में कोई डाउट? फर्स्ट 10 6 का ऑप्शन नहीं समझा। 6 का ऑप्शन 6 क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ईए और बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये दे रखा है हमारा डेल्टा एच। ठीक है, ए प्लस जब हम लिखते हैं ना एनर्जी इधर, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू गिव बी, तो ये एनर्जी दे रखी है यहाँ पे, राइट, दिस इज डेल्टा एच। तो ये एक्चुअल में क्या है, एनर्जी यहाँ पे रिएक्टेंट साइड मिल रही है, तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू +10। यहाँ पे सब में ही ऐसा है, डी ऑप्शन छोड़ के। एनीवे, व्हाट इज डेल्टा एच? डेल्टा एच इज इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ईए बैकवर्ड माइनस ईए फॉरवर्ड। एक बार मुझे क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यही फॉर्मूला है। तो ये होता है इधर, तो छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करना है तो नेगेटिव आएगा, छोटे में से बड़ा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला डेल्टा एच, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, बस रख दो। जहां इन्होंने क्या पूछा है, बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर, तो बैकवर्ड रिएक्शन कब ग्रेटर होगा? जब ये वैल्यू निगेटिव होगी। पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होगा, ये फॉरवर्ड बढ़ा है, तो निगेटिव किस में है? इसमें है, फोर्थ ऑप्शन में। डेल्टा एच इज इक्वल टू -40, तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, बैकवर्ड बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फॉर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंपीटिंग रिएक्शन, ठीक है, x is going and y is going, 50% of x was completed when 96% was completed, the ratio of reactant K2 and K1। तो देखो टाइम सेम है ना, मतलब एक सेम टाइम में 50% गई, एक सेम टाइम में 96% चली गई, तो 96% चली गई तो बचा कितना, 4%। तो लिख लो पहली वाली के लिए, T is equals to 2.303 by K1 log 100 by 50, बचा कितना, 50% कंप्लीट हुआ तो 50 बचा। ठीक है, एंड T equals to 2.303 K2 log 100 by 4, तो यहां से बना 2 और यहां से बना 25, ठीक है, 25। बस इसको डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बस ये रह जाएगा। तो क्या रह जाएगा, log 2 डिवाइड बाई K1 इंटू K2 पर log 25 इक्वल्स टू 1। सॉल्व, इसको सॉल्व कर लो। log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3, log 25 की वैल्यू क्या है, 2 log 5, 2 log 5 मतलब 1.4 K2 बाई K1, तो बस 1.4 बाई 0.3, 14 बाई 3 आ गया आंसर। 14 बाई 3 5 के आसपास है, तो बस हो गया 4.65, एक ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 5 भी है, 5 7 5 में क्या है, decomposition of formic acid on cold surface follows first order reaction and specific red constant is this and this। energy of activation formula लगाओ भाई, log K2 by K1 is equals to EA by 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। आपको K1 K2 पता है, टेम्परेचर पता है, EA निकाल लो। फिफ्थ क्वेश्चन, और कौन सा है,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? हाफ लाइफ पीरियड फॉर कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एट 50 mm is found to be 4 hour and 100 mm is found to be 2 hour. The order of reaction, ये एक तरह से कंसंट्रेशन दे रखे हैं, ठीक है? ये क्या दे रखा है? कंसंट्रेशन 50 mm, मतलब प्रेशर के टर्म्स में कंसंट्रेशन दे रखी है श्रेया। तो ये कह रहे हैं कि जब कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, है ना, तो हाफ लाइफ आधी हो रही है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है ना, टी हाफ इज इक्वल्स टू इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू पावर 1 माइनस एन। बस पुट कर लो, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्या बचा देखते हैं सर। हाँ 7 क्वेश्चन बता दिए ना? 7 नहीं बताया अभी? सर हाँ आपने बोलो। सर आपने वो 5th क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करने को बोला ना, तो हाँ। फॉर्मूला यूज करके नहीं आ रहा। मैंने अरे फॉर्मूला आएगा यूज यार, किया कैसे था। नहीं आएगा? तुमने कुछ गलती की होगी, 2.303 का टर्म भूल गए होगे। ये भाई 2.303 किया तो सर। अबे क्यों नहीं आएगा भाई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है। एक बार और ट्राई करो, नहीं आया तो भेजना मुझे, सॉल्यूशन भेजना, मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक मैं बता दूंगा। ठीक है सर, वापस ट्राई करते हैं। हाँ, question number 7. The first order reaction A gives product and second order reaction 2R gives product. Both have half time of 20 minutes. Then they are carried out taking 4 mole of their respective concentration. More of their respective. हाँ ठीक है, concentration ठीक है. Number of moles per liter of A and R remaining unreacted after 60 minutes from the start of reaction will be. ठीक है, तो देख लो, ये वो वाली बात है जो मैंने आपको ऐसे समझाई थी, ए बी फर्स्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर के लिए ये निकालना है। तो आपको पता है 60 मिनट्स, एक एक करके लगा लो, सॉरी ऐसे लगा लो। ए के लिए तो सिंपल है, 60 मिनट का मतलब है 3 हाफ लाइफ, 20 20 20। तो ये 4 मोल से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हो गया 1 से 1.5 खत्म हो गया, 0.5 आ गया ए। और उसके लिए आपको सेकंड ऑर्डर के लिए निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिख लो क्या फॉर्मूला है, 1/ct माइनस 1/c नॉट इज इक्वल टू k इंटू टी, ये फॉर्मूला है। तो एक बार t की वैल्यू 20 डाल दो, ये हो गया 2/c नॉट माइनस 1/c नॉट इज इक्वल टू k इंटू टी हाफ, टी हाफ मतलब 20। ठीक है, इससे k निकलेगा, k इसको यहाँ पे पुट कर दो, ct की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, 7th क्वेश्चन। 10 तक और कोई डाउट? 10 तक अभी हम देख रहे हैं, पहले 5 बता दिया, 9 कोई पूछ रहा है 9। A plus B gives C plus D follows a Reynolds law. A half, B half starting initial concentration of 1 mole each and then amount becomes 0.25 mole. So 1 से 0.25 हो रहा है ना, तो 2 half life आ गई। ये ओवरऑल तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, राइट? ओवरऑल दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर मान लो इसका रेट लिखेंगे, तो रेट क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए हाफ बी हाफ। ठीक है, और एक को अगर हम लिख लेंगे माइनस डी ए माइनस एक्स डिवाइड बाई डी टी। दोनों की कंसेंट्रेशन इनिशियली 1 ही है ना, तो 1 माइनस एक्स लिखेंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगी पावर, तो ओवरऑल पावर 1 ही हो जाएगी। यहाँ से देख लो, तो फॉर्मूला आपका बनेगा जो, वो ऐसे बनेगा, dx by dt इज इक्वल्स टू, यहाँ अंदर जाएगा माइनस, तो माइनस के कारण ये dx by dt इज इक्वल्स टू k 1 माइनस x टू पावर 1 माइनस x टू पावर 1/2 प्लस 1/2 1। तो ये एक तरह से वही हो गया जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखते हैं, इसलिए डू नॉट गेट कंफ्यूज। अगर वो 1 से 0.25 जा रहा है, मतलब 2 हाफ लाइफ चली गई उसकी। ठीक है, और हाफ लाइफ निकाल लो, हाफ लाइफ आ रही है 300 सेकेंड,
so you'll get the answer. ये मैं बेटा हर दिन अब डाल रहा हूँ मोर और लेस. एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि लैपटॉप फ्री नहीं रहता है, so that's why I'm not able to send regularly the link. तो अभी मैं अपलोड कर दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, राइट, एंड यू कैन चेक. ठीक है, तो अभी 10 तक ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी टाइम हो गया है, कई लोगों को दूसरा क्लास अटेंड करना है. सो ठीक है, तो विल डिस्कस फ्रॉम हियर नेक्स्ट, है ना. तो आप अभी क्या करो, अभी छोड़ो, कुछ मत करो, जितना बैकलॉग हो रह गया है बस उससे सॉल्व कर लो. दैट्स इट.